السلام علیکم خالہ جان، یہ میری خالہ ہیں، بہت پیاری، اکلوتی، ہمیشہ سے میرا ساتھ دینے والی، اور جیسے ابو کہتے ہوتے ہیں اکلوتی سالی، ہے نا؟ وہ مجھے کہتے ہیں تم میری اکلوتی سالی، وہ کہتے تم میری 8ویں بہن ہو، میں نے کہا نہیں میں آپ کی اکلوتی سالی آئے ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے نا، ابو 7 بہنیں ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا 8ویں بہن، تو کہتے ہیں نہیں میں اکلوتی سالی سالی کا رشتہ بہت پیارا ہے۔ بہت اچھے بھائی جان ہیں میرے، اللہ ان کو تندرستی، زندگی تندرستی کے ساتھ دیے رکھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں سیمی جب سے میں ایف ایس سی میں تھی، جب آپا کی شادی ہوئی نا، ہر چھٹیوں میں میں جاتی تھی، گرمیوں کی چھٹیوں میں تو بڑا انہوں نے مجھے انٹرٹین کیا، جہاں جاتے تھے مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور کبھی تو کہتے تھے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے سیمی بڑی ہو گئی۔ کیوٹ، اور ہاں نا؟ سیمی کو میں کھلاتی تھی، سیمی کو میں کہتی تھی گڑیا، اور سیمی مجھے تو تمہاری وہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا، میں نے کہا سیمی امی کہاں گئی ہیں؟ کہتی خالہ وہ گئی تو ہسپتال ہیں، پر جب وہ نہیں وہ گئی تو بازار ہیں، لیکن جب بازار جاتی ہیں نا تو مجھے کہتی ہیں میں ٹیکہ لگوانے جا رہی ہوں۔ ہسپتال جا رہی ہوں؟ میں اسپتال جا رہی ہوں کیونکہ بچے ڈرتے ہیں نا اسپتال سے بھی، ٹیکے سے۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ سیمی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی، اور گڑیا کو لٹا، خالہ ادھر دیکھیں، اس کی طرف دیکھیں گی تو پھر تو ہاں ایسے۔ گڑیا کو لٹا کے نا تو کہتی ہے کہ دیکھو تم، عامر اور تم سے اس وقت دونوں ہی تھے، کہتی ہے دیکھو ماموں گھر پہ ہیں، میں ہسپتال جا رہی ہوں، تو تم سو جاؤ، چپکے سے سو جاؤ۔ میں نے کہا بچے بھی کیسے بڑوں کی باتیں نقل کرتے ہیں، ہاں اور بالکل۔ یہی سیمی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نانی دادی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ نانی بھی ماشاءاللہ۔ اللہ بنا دے، دادی تو بن گئی ہوں۔ ہاں نانی بھی انشاءاللہ بنے گی جب اور بیٹیوں وہ کی والا شادی۔ واقعہ خالہ سنایا نا جو آپ کی سوئی چپ گئی، پھر میں کہہ رہی تھی کیا کہ فکر نہ کرے۔ مجھے کانٹا چو گیا تو مجھے کہتی ہے خالہ خالہ آپ فکر نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ ابھی ٹھیک ہو جائیں گی، فکر نہ کریں، ہاں فکر نہ کریں۔ کتنی چھوٹی تھی میں؟ آپ ہوں گی کوئی 2.5-3 سال کی، ہاں 2.5-3 سال کی، اچھا تو بڑی مزے کی ایسی پکی پیٹھی باتیں کرتی تھی جیسے بڑی عقل مند لڑکی ہے۔ یہ جو میری خالہ ہے نا بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، یہ آرمی میں گائناکالوجسٹ تھیں، کرنل ریٹائر ہوئی ہیں، اور انکل بھی بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے ماشاءاللہ، اور بہت ہی انہوں نے بھرپور زندگی گزاری ہے نا الحمدللہ خالہ؟ الحمدللہ، میں نے زندگی کی ہر سٹیج بہترین گزاری ہے۔ شادی سے پہلے، پھر پہلے میں سول میں تھی، پھر میں نے شادی ہوئی، آرمی جوائن کر لی، 23 سال تک میں یونیفارم میں نے سرو کیا، اور میں جب 68 میں جنرل ایوب اس وقت ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، اچھا وہ آئے تھے ہمارے اسپتال، ان کی بہو کے بیٹا ہوا تھا، اچھا، انہوں نے ہم سب لیڈی ڈاکٹرز کو ایک سویٹر تحفہ دیا تھا۔ آئے، اچھا، ہاں ماشاءاللہ بڑی اچھی ماشاءاللہ، زندگی گزاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہاں ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی گزاری ہے، بہت الحمدللہ، اچھی، بہت دیکھیں شاندار بہت، جگہ پہ اپنے پوتوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، بیٹوں کے ساتھ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں میرے بچے بڑی مجھے پیار بھی کرتے ہیں، مجھے عزت بھی کرتے ہیں، اور یہاں جو ارد گرد میری فرینڈز ہیں، ہاں، ہمارا واک کرتی سرکل ہیں ہے، ابھی بھی، یہ روز واک وہ کرتی ہیں، کرتی ہیں، وہ سرکل ہے، کرتے درس پہ ہوں، جاتی ہیں، درس بھی ہے نا؟ ہاں وہ عائشہ گھر پہ صبح درس گھر پہ قرآن بھی ہوتا ہے کرتی ان ہے، کا ماشاءاللہ، گھر ان پہ کی، بھی ہوتا ہاں ہے، بالکل اور ادھر بالکل ہمارے ارد گرد اب تو دیکھو قرآن کے ساتھ ہی جڑ گئے ہیں، بالکل اللہ کا شکر ہے، بالکل، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بہت بالکل۔ بہت بہت اللہ کا کرم ہے، بہت اللہ کا کرم اور ہے۔ خالہ جو آپ کی شادی ہوئی نا، خالہ بڑا مزے کا واقعہ بتاتی ہیں، ان کی شادی کیسی ہوئی، اور وہ خالہ ذرا شارٹ کٹ میں ذرا وہ شادی کا واقعہ سنائے۔ انکل باہر سے آئے انگلینڈ سے پڑھ کے، اور ان کی جو ہے نا ساس اور نند ایک بہو ڈھونڈ رہی تھی، اور آپ کی پوسٹنگ کہاں تھی؟ میری پوسٹنگ تھی منڈی بہاؤدین، ملڈی بہاؤدین میں، منڈی اور ایک بہاؤدین۔ دن اچانک جو ہے یہ لوگ نہیں پہنچ بات گئیں۔ ایسے ہوئی کہ ہاں، پہلے میں شیخو پورہ میں تھی، اچھا تو انہوں نے وہ تمہارے انکل نے کہا کہ اماں اگر آپ چاہتی ہو کہ میں پاکستان میں رہوں تو میری شادی کر دیں۔ اچھا پھر انہوں نے پوچھا کسی سے کہ کوئی رائیوں کی لڑکی بتائیں جو نئی نئی ڈاکٹر بنی ہے،
उन्होंने कहा वो शेखुपुरा में एक है। ये शेखुपुरे गई तो वहाँ जी क्या उनकी पोस्टिंग तो मंडी बहुत दिन हो गई है। वहीं से मुझे माँ बेटी बस में लाहौर से शेखुपुरा से वो पहुँची वहाँ। तो वो आफ्टरनून थी तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, वो दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो मैं एक लेडी डॉक्टर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो शायद मुझे मिलने आए। अच्छा। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा आप डॉक्टर हैं? फलान डॉक्टर कहती नहीं तुम मुझे नहीं आती है, तुम ज़रा दरवाज़ा तो खोलो, हमें अंदर तो आने दो। अच्छा। मैंने कहा हम लाहौर से आए हैं। अच्छा। हम लाहौर से आए हैं, हमारे कोई रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। अच्छा। तो हमें उनका घर नहीं मिल रहा, तो हमने कहा अब रात हो गई, औरतें कहाँ ठहरें। तो कहती हैं मैं कि अगर आप इजाज़त दो तो आ जाए। मैंने कहा आ जाओ फिर। तो कहती हैं कि मैंने शाम का मैंने कहा अब आप लाहौर से जो आई हैं तो अब तो खाना भी नहीं खाया होगा। कहती नहीं खाना। मैं क्या खिला दूँ फिर। मेरी मेड जो है वो तैयारी कर रही थी, समेट रही थी। मैंने कहा चलो भाई इनको खाना खिलाओ। अच्छा। खाना खिलाया। मैंने कहा फिर सर्दियाँ थी, मैंने कहा अब तो फिर अब चाय भी आपने पीनी होगी। कहती हाँ पिला दे, चाय पिला दे तो क्या ही बात है। अच्छा। चाय पिला दे। अब मेरे बेडरूम में 2 ही पलंग थे। अच्छा। एक पे मैं सोती थी, एक पे मेरी कोई फ्रेंड कभी आ जाती थी सोती थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि वो हम औरतें 3 हैं तो पलंग 2 हैं तो कैसे करें। मैंने कहा चलो अम्मा को ये दे देते हैं और हम जो है ना दोनों सो जाए। सासू माँ को जो होने वाली थी। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं था? मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा। तो वो फिर रात फिर कहने लगी मेरा भाई है, बड़ा शानदार है, बड़ा खूबसूरत है, इंग्लैंड से आया है। हाँ। वो कहता है आप कहती होंगी मुझे हम क्या बता लड़की रही है? ढूंढनी है तो हम देख रहे हैं कोई। अच्छा। तो खैर तो रात हुई, फिर मैंने सुबह का नाश्ता भी कराया उनको। अच्छा। फिर मैं उनको बाहर तक छोड़ने गई तो कहती हैं कि अगर मैं आपको ख़त लिखूं तो आप जवाब देंगे। मैंने कहा कोई फ्रेंडली ख़त हो तो कोई हर्ज नहीं अच्छा। है। अगले दिन मैं देखूं तो मैं आउटडोर में बैठी पेशेंट्स देख रही थी। अच्छा। तो ऐसे मैं पेशेंट देख रही थी तो ये मेरे सामने खड़ी। हाँ। तो मैंने कहा कि आप? कहती है मेरे साथ मेरे भाई और भाभी भी हैं। अच्छा। मैंने कहा साथ ही मेरा अंदर ही घर था मेरे अस्पताल के। मैंने कहा चले फिर घर चले। तो मैं पहले अंदर गई, हम ख़वातीन अंदर चली गई ना तो वो आवाज़ देती कहती शिजा तू भी आ जा। मैं कोई होए ऐसे वही लड़का भी आ गया। अगले दिन फिर आप शर्माई शुरू हुई है क्या नहीं हुआ? ना, मैंने सोचा ही नहीं। हाँ। जब हम वो वहाँ से आ रहे थे तो मुझे रास्ते में पूछते हैं ये कौन से कितने पेशेंट्स आ जाते हैं यहाँ रोज। अच्छा। आउटडोर में ज्यादा कौन से पेशेंट्स होते हैं? खालू पूछ रहे हैं। हाँ। हाँ। तो मैंने बताया तो ये ऐसी 2-3 बातें उन्होंने मुझे की। अंदर आए तो फिर मैंने चाय पिलाई। तो कहते हैं हम चलते हैं। तो अगले दिन मेरी अम्मी आ गई। हाँ। उससे दूसरे दिन कहती हैं वो तेनू तो देख गए ने हाँ। ते वो कहते ने सानू रिश्ता चाहिए। हाँ। ते मुंडे ने वापस चले जाना है, हाँ। फिर निकाह कर दो। फिर मैंने कहा मेरी अम्मी फिर आपके अब्बू के से पूछने गई हाँ। कि क्या ख्याल है। फिर आपके अब्बू मुझे कार में बैठा के कहते निकाह तो नहीं मंगनी कर देते हैं। अच्छा। फिर मैं लाहौर उनके साथ गई तो उधर से जनाब वो हम बड़ा खूबसूरत मेरे लिए लाल जोड़ा लेके आए। अच्छा माशाल्लाह। खाला पुख्तो की खबर ही लगी के। हाँ। खाला को पश्तो भी आती है बड़ी अच्छी। नड्डी रन राजी का गुजारा कवे समय गुजारा कवे। हाँ कना देखिए ना खाला को पश्तो भी आती। तो तुम्हारी वो दादी याद आती हैं। हाँ ये हमारे गांव बहुत जाती होती थी। मेरे सारे जाते थे मुझे लेके जाते थे फूफियों के साथ और सबके साथ बहुत दोस्ती। पश्तो भी वहीं सीखी है ना। हाँ तो वो तो तुम्हारी इस दादी तुम्हारी इतनी स्वीट थी, ऐसे प्यार से वो थी मुदस्सिरी राशा करना देशा देखो राशा। बड़ी मुझे याद आती, बड़ी नेक और प्यारी खातून थी। बिल्कुल बिल्कुल मुझे वो याद आता है। बड़ा सा दलान होता था वहाँ, एक बड़ा सा पलंग बिछा होता था, उसके ऊपर सफ़ेद चादर होती थी। और तुम्हारे दादा और वो दादा बैठे हुए थे और पाइंती पे तुम्हारी दादी। हाँ। तो उनसे बातें करते थे। हाँ बिल्कुल। और बड़ा बेरी का दरख्त होता था बाहर है। बड़ा सा गेट था, फाटक। और साथ ही एक मजे की जो बात थी ना, वो एक छोटा सा दरवाजा खोलो तो आगे तुम्हारा बाग और जमीनें। हाँ। और वहाँ फलदार दरख्त और ये
और वो तनूर की रोटियां हैं। तंदूर की रोटियां, बल्कि मैंने कहा मुझे भी सिखाएं रोटी, उन्होंने मुझे रोटी भी पकानी सिखाई। वो तो हाथ जल जाता है, आपने बनाई फिर? हाँ लगाई थी। अच्छा अच्छा तुम्हारी जो है ना फुफ्फियाँ, हाँ। फिर मैंने ईद एक वहाँ गुजारी, अच्छा तो फिर तो वो सारी रात वो छत पे पलंग था, गाने गाती रही, नाचती रही, और मेहंदी लगा के तो ऐसे ऐसे और सारे गुंजाखी बनाते हैं वहाँ पर तो गांव में। आगा बड़ी मजेदार हाँ। थी। अच्छा 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 अच्छा। आ जाओ, अभी खड़ी हो जाओ, साथ उधर खड़ी हो जाओ। ओ ये खाला की बेटे की बेटी है, मेरे बेटे की पोती है। बेटे की पोती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे हैं तो कैसे कैसी प्यारी बच्ची है ये। तो ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती है। खाला हैं, खाला बस मेरी बहुत ही प्यारी हैं। मामू एक रह गए हैं जो इंग्लैंड में हैं, बाकी सारे लमिया के पास चले गए बस हैं। मैं भाई शफीक को कभी टेलीफोन करती हूँ, मैं कहती हूँ 8 थे हम, बस हम 2 रह गए हैं। हाँ तो बस बस ऐसे ही ऐसी है है इंसान। ज़िंदगी। चले खाला, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। और ये खाला की और खालू की कोशिशें और मेहनतें हैं। खालू को शौक़ था बहुत ज़्यादा सब्जियों का, तो अब खाला भी करती हैं और हमें भी यहाँ से मिलती होती हैं मूलियाँ, गाजरें और पुदीने और गोभियाँ हैं। और ग्रेप फ्रूट खाला ख़त्म हो गए हैं। अब ये नए लगाए हैं ना, वो पुराने हो गए। अच्छा अच्छा, बहुत ग्रेप फ्रूट और माल्टे थे यहाँ जो कि अब इन्होंने नए लगाए हैं। तो अल्लाह खुश रखे, अल्लाह घर को आबाद रखे, अल्लाह खाला को बहुत ज़िंदगी दे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे, खुश रखे बहुत। हाँ मेरी वीडियोस देखती है ना खाला? हाँ बहुत देखती हूँ, शौक से देखती हूँ। तुम्हें तो अब बच्चे भी है, बच्ची भी आई, कहती सिमी बाजी आई है। मुझे पहचान गई है। चले अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना वो क्या उसे कहते हैं, फौजी सलाम करे ना, कैसे करते हैं? सलूट। ये ऐसे उंगली करके करते हैं? ऐसे जो आर्मी वाले होते हैं वो ऐसे करते हैं, जो एयर फोर्स वाले होते हैं वो ऐसे अच्छा ये भी फर्क है। ओके चले जी। तुम्हारे अंकल नए नए आर्मी में आए ना, हाँ वो आए, असल में इन्होंने ट्रेनिंग कोई नहीं ली और सीधे आ गए। अच्छा। तो कहते हैं पहली दफा सीओ आया राउंड करने, हाँ तो वो अंग्रेजी की बड़ी आदत थी, कहते आई सल्यूटेड हिम एंड बोर्ड अ लिटिल। तो उसने कहा तुम सल्यूट कर रहे हो कि अदावर्स कर रहे हो? तो अंग्रेज तो वो करते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, और एक वो खाला वाकया सुना दे मुझे, कई दफ़ा दिल करता है आपसे मैं करवाऊँ। जो चाइना गए थे और सामान वो उठा लिया था, वहाँ के कोई हेड थे जो उनको रिसीव करने आए थे, याद है आपको? आप बताती होती गए थे ना, आपको याद है? हाँ। चाइना गए थे जब ये पंचर का कोर्स करने। हाँ। तो कहते हैं कि सामान उठाया, तो मैं समझा कोई सामान उठाने वाला है, तो वो तो उनका कोई बहुत बड़ा ऑफिसर था, है ना? ऐसा कुछ हुआ था। तो वहाँ पर कोई बुरा नहीं मनाते हैं? नहीं हाँ बिल्कुल बुरा। हमारे यहाँ तो सामान जो है ना उठाना अच्छा नहीं समझा जाता है। बल्कि तुम्हारे अंकल तो जो खुद अंग्रेज़ों में रहे थे, उनकी बहुत अंग्रेज़ों वाली आदतें थी। तो जब हमने नाइजीरिया जाना था ना, तो मुझे कहते देखो 4 मेरे बच्चे और मैं, कहते 1 सूटकेस होना चाहिए, उसमें 3 कमीज शलवार एक जोड़ा रखो और 3 साड़ियाँ और 3 बच्चों के। अच्छा। और वो इतना वजनी हो कि जरूरत पड़े तो तुम खुद उठा। हाँ वाकई ये कितनी अच्छी बात है। हाँ। उसके बाद जब मुझे फिर कहते हैं दिखाओ क्या क्या रखा है। अच्छा। जब मैं रखे तो काम वाली साड़ियाँ, तो कहते तो ब्याह चल रही है जरूरत साड़ी है, सादी सीधी सादी, वहाँ सब कुछ मिलता है। हाँ, अच्छा। सब कुछ कहते मिलता है। पैसे वो क्या हमेशा कह रहे थे कि लेस लगेज एंड मोर मनी। यू शुड हैव मोर मनी, लेस लगेज। दैट इज वेरी राइट। बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा इंसान, बहुत बहुत शानदार इंसान, शानदार। देखो मैं जिस बात से उनकी बहुत मैं इम्प्रेस हूँ ना, वो ये है कि डॉक्टर बनते ही वो बाहर चले गए। 8 साल वो अंग्रेज़ों में रहे, वहाँ जॉब की, और फिर जब शादी की, मुझे देख के पसंद करके एक सादी सी, उन्होंने कहा कि जो लाइफ पार्टनर है वो सादा होना चाहिए। सही। मैंने कितना अच्छा डिसीजन, बहुत माशाल्लाह, कितना अच्छा टाइम गुजरा। बहुत ही जिंदगी की हर स्टेज हमने एंजॉय की है। वी वर लाइक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमेशा सारी जिंदगी फ्रेंड्स। बिल्कुल बड़ा अल्लाह का शुक्र है। कौन है? बेबीज आ गए? कौन से हैं? आ जाए।
आपकी फ्रेंड्स हैं, चलो ठीक है। चलें खाला, बहुत अच्छा लगा, फिर इंशाल्लाह और बातें करेंगे। अभी बच्चे इतने खुश हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। बड़े अरसे से मेरा दिल था कि मैं आपका इंटरव्यू करूं और आपकी ये बातें रिकॉर्ड करूं, फिर किसी दिन और भी करूंगी जिसमें आप अम्मी अब्बू की बातें भी बताएंगे, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह जज़ाकल्लाह।